آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں مس مینجمنٹ اور حد سے زیادہ خود اعتمادی این249 میں مسلم لیگ نون کی شکست کی وجہ بنی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ کون سی چیز تھی جس کی بنیاد پر 8-9 بجے مفتاح اسماعیل نے جیت کا جشن منایا۔ ری پولنگ ہوئی تو نون لیگ 5 سے 10,000 ووٹوں سے ہارے گی۔ عمران خان اور بزدار کو ہٹانا آپ نہیں چاہتے اور کہتے ہیں کہ ڈیل پیپلز پارٹی کی ہو گئی۔ بار بار ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ڈیل کر لی۔ عمران کو ہٹانا آپ نہیں چاہتے، بوزدار کو گرانا آپ نہیں چاہتے، ڈیل ہماری ہے۔ نون لیگ کی مس مینجمنٹ اور حد سے زیادہ خود اعتمادی ان کی شکست کا سبب بنی ہے۔ جب تک ٹی وی پر جو نتیجہ آتا رہا جس میں مفتاح صاحب مبینہ طور پر آگے تھے، تب تک کوئی شکایت نہیں۔ سوال تو ہمارا بنتا ہے انہوں نے یہ 8-9 بجے جیت کا جشن کس بنیاد پر منایا؟ کسی بھی موقع پر پی ایم ایل این ہم سے آگے نہیں نکلی، ٹی ایل پی ہم سے آگے نکلی۔ سعید غنی کیسے دے رہا ہے؟ سعید غنی کے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ بھئی سعید غنی تمہاری طرح چول تو نہیں ہے نا۔ اسلام آباد میں ایک صاحب نے ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ کے بعد ان کو پتا چلا کہ 2 پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو گئے اور انہوں نے کسی کو رزلٹ نہیں دیا۔ یہ حال ہے کینڈیڈیٹ۔ پولنگ اسٹیشن نمبر 261 کا جو فارم 45 ہمارے پاس تھا وہ بھیجا کہ بھئی ہمارے پاس ہے۔ 260 کا جو تھا اس پریزائڈنگ آفیسر نے باہر دیوار کے اوپر فارم 45 لگا دیا اور یہ کہا کہ جی اس کی تصویریں بناؤ۔ اگر ری پولنگ ہوئی تو مسلم لیگ یہ کم از کم 5 سے 10,000 ووٹوں سے ہاریں گے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہو تاکہ یہ چک چک جو ایک دفعہ انہوں نے شروع کی ہے اس کو ہم ختم کریں اور ان کو ان کی اوقات پر لے کر آئیں۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن NA-249 کا ریکارڈ اور ووٹوں کے تھیلے قبضے میں لے اور یقینی بنائے کہ یہ سیلڈ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شک ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے ریکارڈ قبضے میں نہ لیا تو گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ شہباز شریف نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس نظام کو دنیا نے مسترد کیا ہے، الیکشن کمیشن بھی اسے ناقابل عمل قرار دے چکا ہے۔ شہباز شریف نے کہا ایک فرد کی خواہش یا حکم پر ایسے اہم قومی کام انجام نہیں پاتے بلکہ انتخابی اصلاحات کا حساس کام قوم کی منشا اعتماد سے ہوتا ہے۔ عوام کی امنگوں کا محور پارلیمان ہے جسے 3 سال سے تالا لگا ہوا ہے۔ انتخابی اصلاحات فریقین کی مشاورت اور اتفاق رائے سے ممکن ہوتی ہیں۔ جب اپوزیشن مثبت تجاویز کی بات کر رہی تھی تو NRO کا شور مچایا گیا۔ ملکی ساکھ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے بہتر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ برباد معیشت، مہنگائی، بے روزگاری اور عوام کی فکر کریں۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی کے الزام لگانے والی نون لیگ اور پیپلز پارٹی انتخابی اصلاحات سے بھاگ رہی ہے۔ ای ووٹنگ کی مخالفت پر شہباز شریف کے دل میں چور نظر آ رہا ہے۔ PDM ریجیکٹ شدہ مال ہے اور خود کو دفن کر چکی ہے۔ نون لیگ ہر الیکشن کے اندر دھاندلی کے الزامات لگاتے ہیں، لیکن الیکشن ریفارم سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جو اس سے بھاگ رہے ہیں وہ اسی دھاندلی زدہ سسٹم کی پیداوار ہے۔ دھاندلی زدہ سسٹم کا تحفظ چاہتے ہیں۔ شہباز شریف کے دل میں چور نظر آ رہا ہے جب وہ ای ووٹنگ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ نظام ان کو سوٹ کرتا ہے۔ اب آپ کو دھاندلی کے نیریٹو کے پیچھے مزید چھپنے نہیں دیں گے۔ یہ آئے نا آگر ریفارمز کا جو ہے وہ حصہ بنے۔ PDM انڈر گراؤنڈ نہیں ہے، PDM اپنے آپ کو دفن کر چکی ہے، ریجیکٹ شدہ مال ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں NA-249 نون لیگ کا رونا دھونا جاری ہے۔ وہی الیکشن کمیشن جس کی کل تک تعریفیں کر رہے تھے آج اسی پر اعتراضات ہیں۔ ہر بار جو الیکشن ہارنا ہے، الیکٹرانک ووٹنگ کی کوشش ناکام بنانا پھر دھاندلی کے لیے ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری نے کہا ہے کہ نون لیگ کا انتخابی اصلاحات پر مذاکرات سے فرار افسوسناک ہے۔ نون لیگ کا یہ کہنا کہ اصلاحات کا عمل پارلیمان کے بجائے الیکشن کمیشن نے کرنا ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انہیں نظام کی سمجھ ہے اور نہ ہی اصلاحات سے کوئی دلچسپی۔ سازش سے برسر اقتدار آنے والی جماعت کیوں اصلاحات کی بات کرے گی؟ اور پڑوسی ممالک سے کرونا کی نئی قسم کی منتقلی روکنے کے لیے NCOC کی ایران، افغانستان اور مینجمنٹ پالیسی پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ نئی پالیسی کا نفاذ 4 اور 5 مئی کی شب سے ہوگا اور 19-20 مئی کی شب تک نافذ العمل رہے گی۔ پالیسی کا اطلاق پیدل بارڈر کراس کرنے والوں پر ہوگا۔ کارگو باہمی تجارت افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر نئی پالیسی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ایران افغانستان بارڈر ٹرمینلز ہفتہ بھر کھلے رہیں گے۔ بارڈر پر ہیلتھ سٹاف،
कानून नाफिज करने वाले इदारों की नफरी भी बढ़ाने का फैसला किया गया है। नफरी बढ़ाने का मकसद टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि सूबे के हस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद थोड़ी कम हुई है। 25 अप्रैल को 1340 और आज 1149 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। एक्सपो सेंटर में 280 एचडीओ बेड्स फाल हो गए। बैकअप के लिए 11 वेंटिलेटर्स भी लगाएंगे। ऑक्सीजन का कोई मसला नहीं। मुस्तकबिल के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेटर्स पर काम शुरू हो गया है। के अंदर इन्फेक्टिविटी रेट कम हो गया जबकि बहुत ज़्यादा था। इम्प्लीमेंटेशन एसओपीज़ पे जब सख्ती से की जाती है तो डेफिनेटली जो आपका रेट है इन्फेक्टिविटी रेट वो कम होना शुरू हो जाता है। 25 तारीख को हमारे पास 1340 मरीज़ दाखिल थे तो आज 1149 मरीज़ दाखिल। पिछली दफ़ा जब आपसे बात हुई थी तो बेड की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो चुकी थी। आज के दिन में 81.50% occupied है। We've got 50 ventilators which are available in Lahore and public sector hospitals. 280 एक्सपो सेंटर्स के आज बेड फाल हो गए विद ऑक्सीजन सप्लाई और आज वहाँ 10 वेंट्स भी लग रहे हैं एज अ बैकअप। मसला है तो गुजरांवाले के अंदर है जहाँ को तकरीबन हमारे इस वक्त तकरीबन 100% वेंटिलेटर्स जो हैं ऑक्यूपाई हो गए। इमरजेंसी बेसिस के ऊपर आज हम 5 वेंटिलेटर्स वहाँ और शिफ्ट कर रहे हैं। मुल्तान की ऑक्यूपेंसी रेट ज़्यादा है। ऑक्सीजन डिमांड का इस वक्त हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्टेमरा जो है वो फ्रीली अवेलेबल है फॉर ऑल आवर पेशेंट्स। हमारे पास 54 एक्टेमरा के टीके मौजूद हैं और हमने 1000 और मंगवा लिए हैं ताकि हमारे मरीज़ों को किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब इस वक्त वैक्सीनेशन के सिलसिले में सबसे आगे है सारे सूबों के मुकाबले में। कल के दिन में सिर्फ एक दिन में 78,000 वैक्सीनेशन हुई है। और पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार है। जानलेवा वायरस ने मजीद 113 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। 24 घंटे के दौरान 4,414 नए केसेस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 9.74% रही। पाकिस्तान में कोरोना के मुहलिकवार वायरस ने 24 घंटे में मजीद 113 अफराद की जान ले ली। एक रोज में पंजाब में सबसे ज्यादा 50 और खैबर पख्तूनख्वा में 40 अमवात हुई। सिंध में 13, इस्लामाबाद में 8, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में एक मरीज का इंतकाल हुआ। कोरोना से अमवात की तादाद 18,000 से बढ़ गई। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में 45,275 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,414 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 9.74% रही। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 89,661 हो चुकी है। वायरस से मुतासरा 5,448 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटे में 5,193 अफराद वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हुए हैं। लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन का आज दूसरा रोज है। इंतजामिया की जानिब से मजीद 15 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। पीर से मार्केट्स दोबारा खुलेंगी। लाहौर में कोरोना पर काबू पाने के लिए इंतजामिया ने शहर में हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन रखने के साथ मजीद 15 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि हुकूमत का इकदाम खुश आइंद है। वो खुद भी SOPs पर अमल कर रहे हैं। हमने दोनों SOPs का पूरा ख्याल रख रहे हैं और स्मार्ट लॉकडाउन को भी हम पूरा फॉलो कर रहे हैं और हमारी ये दुआ है कि इस वबा से अल्लाह ताला हमारी जान जल्द छुड़ाए। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के दिनों में वो सिर्फ ज़रूरत पर घर से बाहर निकलते हैं। ज़रूरत की टाइम कुछ सब्जी लेने निकला है या कोई दवाई लेने निकल रहा है। ये गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर दिया है जो फुल कर। यहाँ पे काफ़ी मरीज हुए हैं यहाँ पे तो लोग एहतियात कर रहे हैं। हफ्ता और इतवार के 2 रोज़ा लॉकडाउन के बाद पीर से शहर की मार्केटें दोबारा खुलेंगी। अवाम मास्क के साथ साथ समाजी फासलों पर भी सख्ती से अमल करें। कैमरामैन नवीज रमजान के साथ बाबर खान, एयरवे न्यूज़, लाहौर। और कराची में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान छुट्टी के दिन लॉकडाउन किया गया है, लेकिन पाबंदी के बावजूद कई इलाकों में दुकानें खुली हैं और SOPs की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। अफसल परवेज रिपोर्ट करेंगे। रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे में ईद की शॉपिंग के हवाले से शहरी परेशान और कारोबारी हजरात दुकानें खोलने के लिए बेताब हैं। ईद की शॉपिंग करनी है लेकिन मार्केट ही बंद है। तमाम कारोबार मरकज बंद पड़ा है।
क्या करें, यही सर पर है। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर भर की मार्केटें तो बंद करा दी गयी, लेकिन गली मोहल्लों में खुलने वाली दुकानों में SOPs पर अमल दरामद कराते हुए इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती। SOPs मतलब हर जगह में फॉलो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बड़े मॉल्स में फॉलो की जाए और छोटे कारोबारी हजरात फॉलो नहीं करें। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो अल्लाह ना करे हमारे बच्चों तक ये हालात ना पहुँचे, इस वजह से एहतियात जरूरी चीज है। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से कोरोना वायरस की तीसरी बढ़ती हुई लहर की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इकदाम सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद नजर आते हैं। ताहम मुकम्मल लॉकडाउन करने में जिला इंतजामिया नाकाम हो चुकी है। अफजल परवेज, ARY न्यूज़, कराची। मुल्क में वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की तादाद 40 लाख से तजावुज़ कर गई है। रजिस्ट्रेशन कराने वालों में 24 लाख से ज़ायद मर्द, तकरीबन 16 लाख ख़वातीन और 25 ख्वाजा सरा शामिल हैं। रजिस्ट्रेशन कराने वालों की बड़ी तादाद का ताल्लुक पंजाब से है। सबसे कम रजिस्ट्रेशन बलूचिस्तान में हुई। मुल्क में 7 लाख से ज़ायद अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है। वैक्सीनेशन कराने वाले की बुलंद तरीन शरह पंजाब से बताई जा रही है। जामशोरों से खबर है, जहां पर कोरोना फैलाव की रोकथाम के लिए कोटरी से हैदराबाद आमदोरफ्त बंद कर दी गई है। हमारे नुमाइंदे दिलदार जावरी हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। जिला जामशोरों के हेडक्वार्टर कोटरी की बड़ी आबादी है जो हैदराबाद से मुंसलक है। वहाँ पर दरियाए सिंध के कोटरी पुल है, वो पुल के एक तरफ दूसरे तरफ पुलिस खड़ी हो गई है। हैदराबाद और कोटरी जामशोरों के दरमियान आने वाले तमाम ट्रैफिक को रोक दिया गया है और वहाँ के अवाम को इस तरफ आने को मना किया जा रहा है, क्योंकि हैदराबाद में बताया जाता है कि केसेस ज्यादा रूनुमा हुए हैं, जबकि जामशोरों में भी कोरोना वायरस के केसेस आए हैं, जो कि यहाँ पर 2 लोग जो हैं उनके मरने की भी इतला है, जबकि जामशोरों अस्पताल में भी वार्ड जो है वो मुकम्मल भर गया है और काफी जो है उस पर कोरोना वायरस के मरीजों की वैक्सीन भी की जा रही है। और जबकि कोटरी शहर, जामशोर शहर, तो कोटरी से हैदराबाद तक आमदोरफ्त बंद की गई है। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बगैर प्रोटोकॉल लाहौर का दौरा किया और लॉकडाउन सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला का कहना था कि लॉकडाउन शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। शहरी मज़ीद पाबंदियों से बचना चाहते हैं तो हिदायत पर 100% अमल करें। वज़ीर आला ने मार्केट्स और बाज़ारों की बंदिश से मुताल्लिक़ ताउन पर ताजिर बिरादरी से इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आला ने SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर इंतज़ामिया, पुलिस, फ़ौज और रेंजर्स की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला ने सफाई की ख़राब सूरत हाल पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हुकाम की सरजनिश की और इंतज़ामात बेहतर बनाने का हुक्म दिया। उधर वज़ीर आला सिंध का कराची के इलाकों बनारस, बाचा खान चरंगी और गुलशन मेमार का दौरा, सड़कों, सफाई और SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। वज़ीर आला ने ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट की तामीर का भी मुआयना किया। वज़ीर आला ने कहा सनतों की तरफ आने और जाने वाले 17 सड़कें तामीर की जाएंगी। वज़ीर आला ने माड़ीपुर नाले की सफाई के काम का भी जायजा लिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की रमज़ान में महंगाई पर हुकूमत पर तनकीद। कहा हुकूमत नादार तबके को रिलीफ देने में नाकाम है, जबकि लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर बोले कि कीमतों पर काबू पाना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। हमजा शहबाज ने कहा पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में अफरा तफरी है, कोई पुरसाने हाल नहीं। महंगाई से आवाम का मुआशी कत्ल जारी है। हुकूमत खामोश तमाशाई बनी है। लेक्चर बंद करके आवाम के रिलीफ के लिए इक़दामात किए जाएं। तो मुर्गी का गोश्त फिर महंगा होगा। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 420 रुपए तक जा पहुंची है। आवाम की कुव्वत खरीद जवाब देने लगी है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है। रमजान मुबारक का 2/3 हिस्सा गुजरने को है, मगर महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं लेता। ब्रायलर मुर्गी का साफी गोश्त 420 रुपए, जबकि चोंच पोटा समेत 364 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। आवाम की कुव्वत खरीद जवाब देने लगी। 370 के करीब रेट है, तो मेरा ख्याल है गरीब के लिए जो एक आसान फूड इंग्रेडिएंट था, अब उसकी फूड में तो ये भी महंगा हो गया है, तो हर चीज़ जो है पहुँच से दूर होती जा रही है। पहले तो हम तकरीबन 1.5-2 किलो ले लेते थे, लेकिन अभी आधा किलो लेके जा रहा हूँ, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई, इतना महंगा हो गया। 350 रुपए का तो ये 330 का दिया है उन्होंने आधा किलो। दुकानदारों का कहना है कि मुर्गियां पालने वाले फार्मर्स के गठजोड़ की वजह से मुर्गी को महंगा कर दिया गया। ये फार्मरों ने कोई एक किया हुआ है, फार्मरों को ये थोड़ा सा
जाके खींचेंगे तो सही हो जाएगा। अवाम का मुतालबा है कि इनके सब्र और हिम्मत का मजीद इम्तहान न लिया जाए। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में कमी लाए। कैमरामैन सईद महताब अली के साथ नजीर भट्टी, AR1 न्यूज़, लाहौर। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी मुंतकली के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ज़िला इंतज़ामिया ने हज़ारों मन गंदम तहवील में ले ली है। गंदम की गैर कानूनी नकलो हरकत के खिलाफ इंतजामिया मुतहर्रिक। गुजरावाला में जिला इंतजामिया ने गंदम की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। गंदम की 23,000 से जायद बोरियां बरामद करके सरकारी गोदाम मुंतकिल कर दी। चिनियोड में गंदम से लदी 11 ट्रॉलियां कब्जे में ले ली गईं। गंदम की 6,000 बोरियां गैर कानूनी तौर पर जंग भेजी जा रही थी। हारूनाबाद में भी 8,750 मन गंदम बरामद कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक 5,000 गंदम काटन फैक्ट्री से बरामद की गई। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, पिछले साल 30 अप्रैल को कराची में 2,559 मेगावाट बिजली सप्लाई हो रही थी, जबकि इस साल 30 अप्रैल को कराची को 3,180 मेगावाट बिजली सप्लाई की गई। वादा किया था 3 साल में 2,000 मेगावाट सप्लाई का इजाफा करेंगे। इन फैसलों के नतीजे आना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगाने वाले बशीर मेमन खुद लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के मशवरे देते रहे। साबिक DG FIA ने लीगी रहनुमा अमीर मकाम के घपले पकड़े, बल्कि गिरफ्तारी का भी मशवरा दिया। वो तो अमीर मकाम की अहलिया और बेटे की भी गिरफ्तारी चाहते थे, लेकिन हुकूमत ने कहा हमें गिरफ्तारी नहीं, रिकवरी चाहिए। बशीर मेमन साहब इमरान खान को कंट्रोवर्शियल करने वाले बहुत आए, नहीं कर सके। इमरान खान एक ईमानदार लीडर है। साबिक DG FIA बशीर मेमन के वजीर आज़म पर इल्ज़ामात की हकीकत सामने आ गई। साबिक DG FIA ने इल्ज़ाम लगाया कि वजीर आज़म ने लीगी रहनुमाओं पर मुकदमे बनाने की हिदायत की थी। दस्तावेज से साबित हुआ कि उल्टा बशीर मेमन लीगी रहनुमा अमीर मकाम की गिरफ्तारी पर जोर देते रहे। PTI ने हुकूमत में आने के बाद महंगे मंसूबों की तहकीकात शुरू की। उस वक्त के DG FIA बशीर मेमन कौमी शाहराहों के मंसूबे N90 और N95 ढूंढ कर लाए, जिनमें करोड़ों के घपलों की निशानदही की। N90 मंसूबे में लीगी रहनुमा की कंपनी अमीर मकाम एंड कंपनी ने घपले किए। तफ्तीश हुई तो अदालत से स्टे ले लिया, लेकिन बाद में कंपनी से 16 करोड़ की रिकवरी हुई। इसी तरह N95 में अमीर मकाम के बेटे इश्तियाक अहमद की कंपनी सार्को घपलों में मुलव्विस पाई गई। उससे भी तकरीबन 9 करोड़ की रिकवरी हुई। ज़राए का कहना है बशीर मेमन ने अमीर मकाम, अहलिया और बेटे की गिरफ्तारी का मशवरा दिया। वजारत मवासलात ने कहा हमें गिरफ्तारी नहीं, रिकवरी चाहिए। इसके बावजूद बशीर मेमन गिरफ्तारी के लिए इसरार करते रहे। बशीर मेमन ने चंद रोज पहले इल्जाम लगाया कि वजीर आजम ने ख्वाजा आसिफ और अमीर मकाम की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। अब ये बात साबित हो गई कि अमीर मकाम की गिरफ्तारी के लिए खुद बशीर मेमन ने ग्राउंड तैयार किया था। बशीर मेमन साहब इमरान खान एक ईमानदार लीडर है। मरियम सफदर का उतारा हुआ नून लीग का 12वां खिलाड़ी बशीर मेमन क्लीन बोल्ड हो गया। वजीर आजम पर इल्ज़ाम लगाने वाले की कोई साख नहीं। फरूख हबीब कहते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड शख्स ने घी मिले और फवाइद लिए, नून लीग की केसेस पर आंखें बंद की, उन्हें कौम के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। PMLN का 12वां खिलाड़ी बशीर मेमन मैदान में उतारा था मरियम सफदर ने, कल खुद क्लीन बोल्ड हो गया। क्या इन्होंने साजिश की थी हुकूमत और अदलिया को आपस में लड़ाने के लिए? बशीर मेमन साहब आप बताएं कौन फीड कर रहा है, किसके खौफ से बेबुनियाद जो है वो इल्जामात लगाए? एक रियासत का वजीर आजम उसके ऊपर खड़ा होकर वो शख्स इल्जामात लगाए जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, जो खुद कॉम्प्रोमाइज हो, जिसने खुद घी मिले लगाई हो, जिसने खुद बेनिफिट्स लिए हो, PMLN के केसेस के ऊपर आंखें बंद करके बैठा हो। इनको शर्म आनी चाहिए, कौम के सामने अब माफी मांगनी चाहिए। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कहना है ईद पर मुसलमान अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, कोरोना के पेश नज़र अवाम एहतियात करें। चौधरी शुजात हुसैन ने पार्टी के सीनियर नायब सदर चौधरी सलीम बरियार ने मुलाकात की। चौधरी शुजात का कहना था कि ईद पर साहिब हैसियत लोग अपने हमसाए में 4 घरानों को 2 वक्त का खाना भेजें या अपने घर बुलाकर खिलाएं। मुसलमान अपनी गलती कोताहियों का एतराफ़ करें। इस मौके पर चौधरी सलीम ने कोरोना मुतासरीन में राशन की तकसीम के बारे में आगाह किया।
अपडेट करें आपको कि नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। यौम अली, एतकाफ, शब कदर, जुमतुल विदा और ईद उल फितर के हवाले से ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं। जहांगीर खान से मज़ीद तफसील जान लेते हैं। जहांगीर, कहिएगा इन गाइडलाइंस में क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं और इसमें बताया गया है कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए यौम हजरत अली के जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। उलमा कराम, ज़ाकिरीन, शहरियों को कोरोना के हवाले से आगाही दें। यौम अली की मजालिस के शुरका की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। मास्क के बगैर शुरका को मजालिस में दाखिले की इजाज़त ना दी जाए। इंडोर और आउटडोर मजालिस में शुरका के माबैन फासला रखा जाए। मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ जो दीगर गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिनमें शब बारात है, एतकाफ के हवाले से उनमें ये कहा गया है कि मोतकिफीन मस्जिद में बिस्तर समेत दीगर सामान घर से लाएं। मुश्तरका सैर व अफ्तार से गुरेज करें। कोरोना अलामात रखने वाले अफराद को मस्जिद के बजाय घर में ही एतकाफ करें। और इसके साथ साथ जुमतुल विदा के इज्तिमा में नमाजियों के आने जाने के लिए अलग अलग रास्ता रखा जाए। दाखिली रास्तों पर थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का बंदोबस्त यकीनी बनाया जाए। जुमतुल विदा के लिए नमाजी जानेमाज साथ लाएं और जबकि वजू का एहतमाम भी घर से करके आएं। एनसीओसी की जानिब से गाइडलाइंस में बताया गया है कि सफ़ों के दरमियान नमाजी फासला रखें। वजू खानों में भीड़ न लगाई जाए। शब कदर के हवाले से जारी गाइडलाइंस में बताया गया है कि शब कदर पर बच्चे और 50 साल से जायद उम्र के अफराद मस्जिद में न आए। शब कदर पर रूहानी महफिल का आउटडोर ही एहतमाम किया जाए। कालीन और दरी वगैरह का इस्तेमाल नमाज के दौरान इबादत के लिए ना किया जाए। शब कदर पर समाजी फासला यकीनी बनाने के लिए फिजिकल बैरियर्स का इस्तेमाल भी मसाजिद में किया जाए। और ईद उल फितर के हवाले से गाइडलाइंस में बताया गया है कि नमाज ईद के दौरान हाथ मिलाने और गले मिलने से मुकम्मल गुरेज किया जाए। ईद उल फितर पर रिवायती अंदाज में गले मिलने से कोरोना फैलने का खदशा है, लिहाजा शहरी एहतियात करें। इसमें शहरियों से ये भी अपील की गई है कि वो ईद पर इंतहाई जरूरी हालात में ही सफर करें और फैमिली के साथ जो इंडोर इवेंट्स का गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। जहांगीर खान, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। मावन खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि दरबारी इस्लाहात पर जितनी बातें कर लें अवाम को धोखा नहीं दे पाएंगे। नाहल लीग करप्ट और धांधली ज़दा जमात है। दुनिया जानती है वोट की असल इज्जत शफाफियत है, जिसे बहाल करने के लिए कोशां हैं। वोट को इज्जत देने के जाली दावेदार राह फरार के मुतमन्नी हैं। ये चीखें, रोएं, पीटें इंतखाबी इस्लाहात होकर रहेंगी। शफाफियत के जरिए इलेक्शन में इंसाफ और तहरीक इंसाफ का बोलबाला होगा। खबर यह है कि पुलिस ने कराची के इलाके साइट और मंगोपीर से कारदम तहरीक तालिबान के 3 दहशतगर्दों और 1 टारगेट किलर को गिरफ्तार किया है। आसिफ खान से मजीद तफसील जानेंगे। जी आसिफ। आज बिल्कुल साइट एरिया का इलाका है जहाँ से कारदम तहरीक तालिबान के 3 दहशतगर्द हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार दहशतगर्द हैं उन्होंने तकरीबकारी के लिए 2020 में नेटवर्क बनाया था और शहर में किसी तकरीबकारी में मुलविस थे और तकरीबकारी की प्लानिंग कर रहे थे, जिस पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई और 3 दहशतगर्द हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके अलावा मंगोपीर का इलाका है, यहाँ से पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया है। जो गिरफ्तार मुलजिम है वो टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलविस है। जो टारगेट, इसका नाम है वलीद उर्फ चिकना। इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो मुलजिम है इसका ताल्लुक लियारी गैंगवॉर के शब्बीर ग्रुप से है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो कराची में कोई भी डाकुओं से महफूज नहीं है। अदाकारा हीरा मानी को 2 मोटरसाइकिल सवारों ने घर के दरवाजे पर लूट लिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि हीरा मानी की गाड़ी जैसे ही घर के दरवाजे पर आकर रुकी, एक मोटरसाइकिल सवार डाकू ने आकर लूट मार शुरू कर दी। इसी दौरान दूसरा डाकू गाड़ी की दूसरी तरफ आकर खड़ा हो गया। गाड़ी से उतरने वाला बच्चा सूरत हाल देखकर अंदर की तरफ भाग गया। मुलजिमान अदाकारा से मोबाइल फोन और कीमती अशिया छीन कर फरार हो गए। सुबह सवेरे कराची के इलाके डिफेंस खयाबान शहबाज में ATM काटने की कोशिश के दौरान अलार्म बज गया। तफसील बताएंगे नज़ीर शाह। नज़ीर, कहिएगा आप, क्या तफसील है इसकी? देखिए, कराची का एक और ATM है जो लिखने से बच गया। ये डिफेंस खयाबान शहबाज फेज 6 में ATM काटने की कोशिश की गई है और बर्वक्त अलार्म और शहरी की इतलानी कोशिश नाकाम बनाई है। और ये सबा एवेन्यू में निजी बैंक है जिसके ATM में वाक़या पेश आया और मुलजमान अपने हमरा जो गैस कटर मशीन अपने हमरा लेकर आए थे और दाखिल होते उन्होंने सबसे पहले ATM पर ताला स्प्रे किया। उसके बाद ATM में मौजूद कैश बॉक्स निकालने के लिए उन्होंने पहला लॉक काट दिया था, लेकिन जैसे ही अलार्म वाला बजा तो वो वहाँ अपना तमाम सामान छोड़कर फरार हो गए। पुलिस की जानिब से जाए वक़ूवत पहुँचकर तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर शाह। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में ट्रेन ऑपरेशन महदूद कर दिया गया है। मुसाफिरों की कमी की वजह से महकमा रेलवे का 4 ट्रेनें मुअत्तल करने का ऐलान किया गया है। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, कहिएगा अंजुम। जी बिल्कुल, जिन्ना एक्सप्रेस, बिजनेस एक्सप्रेस,
کراچی ایکسپریس اور گرین لینڈ ایکسپریس کو معطل کیا گیا ہے۔ کورونا کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے مسافروں کی تعداد کافی کم ہو گئی تھی، تو محکمہ ریلوے نے یہ فیصلہ کیا کہ 4 ٹرینوں کو معطل کر ان کو دیگر ٹرینوں میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ کراچی ایکسپریس اور بزنس ایکسپریس کے مسافروں کو قراقرم میں روانہ کیا جائے گا، جبکہ گرین لائن کے ایکسپریس کے مسافروں کو سر سید ایکسپریس میں روانہ کیا جائے گا، اور یہ ٹرینیں سر سید اور قراقرم اپنے وقت مقررہ سے 30 منٹ تاخیر سے چلیں گی، تاکہ ان ٹرینوں کے مسافروں کو بھی لے جایا جا سکے، تاکہ ان ٹرینوں میں بک ہوئے مسافروں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شکریہ انجم۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.